اور مقامی پاسٹر پاسٹر سائمن بھائیوں کی آواز کم ہے. زوردار تالیاں ذرا زندہ خدا کے لیے. اور زندہ خدا کی زندہ حضوری میں آپ سب کو خوش آمدید. کتنے آج خوش ہیں؟ ہاللیلویا. آج ہم جو ہے وہ کرسمس کے جو ہے وہ مہینے کے اندر جو ہیں اور یہ بڑی خوشیوں کا مہینہ ہے اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آج جو ہے وہ اس آج کے دن جو ہے وہ یہ پہلا کرسمس کا میسج جو ہے وہ آپ سنیں گے بڑے دن کا. اور لگاتار اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ہم کرسمس کے حوالے سے ہی کچھ ٹاپکس جو ہے وہ دیکھیں گے اور خدا ہمیں جو ہے اس کلام کے وسیلہ سے خوب اس مہینے میں جو ہے وہ برکت دے. جو سننے کے لیے ہے مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں آپ سب سننے کے لیے آئے ہیں. تو جس نے کوئی بات چیت کرنی آپس میں ابھی کرے. جس نے کسی سے کچھ بھی کہنا ابھی موقع ہے, اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھیں گے. اوکے ہوگی بات؟ آپ نہایت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ سنیے گا. آج کو جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے گڈ نیوز فار ایڈم, آدم کے لیے خوشخبری. کیا مضمون ہے؟ آدم کے لیے خوشخبری. اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا نے آدم کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا کام کیا جو آدم کر ہی نہیں سکتا تھا. اگر آپ کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ غور کریں کہ کرسمس جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کرائسٹ اور ماس دو لفظ ہے. کرائسٹ اور ماس بھی کہتے ہیں, مس بھی کہتے ہیں. اور ماس کا مطلب جو ہے وہ عبادت ہے اور کرائسٹ کا مطلب جو ہے وہ مسیح ہے. یعنی کہ مسیح کی عبادت جب کی جاتی ہے. اور میرے بہنوں اور بھائیوں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کرسمس جو ہے جو بڑا دن ہے وہ گناہگاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ایمانداروں کے لیے ہے. یہ آپ لکھ لیجئے, اپنے پلے باندھ لیجئے اس بات کو. کرسمس جو ہے یہ ایمانداروں کے لیے ہے, یہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس جنم دن کے اسی کے جنم دن پر جب خوشیوں کے اندر جو ہے وہ بہت محب ہوں گے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کیا میری روح نجات یافتہ ہے, کیا شخصی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ میرا تعلق یا رشتہ جو ہے وہ آیا ہے. ہمارا وہ خداوند یسوع مسیح جو کامل خدا تھا اور کامل انسان بن کر اس زمین پر اترا اور اپنے آپ کو پست کیا, اپنے آپ کو اتنا پست کیا کہ ایک خادم کی صورت اختیار کی اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا تاکہ وہ ہماری طرح بن کر جو ہے وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھائے. میرے بہنوں اور بھائیوں, پیدائش کا مطلب اس دنیاوی لحاظ سے جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ہے وہ کسی کے گھر میں تو اس کو پیدائش کا نام دیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ پیدا ہونے کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ بائبل مقدس کے حوالے سے دیکھیں تو میرے بہنوں اور بھائیوں یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے تو اگر اس کو ہم پیدائش کا نام دیں تو بائبل اس خیال کا جو ہے وہ ہمیں ہمارا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیتی, کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق مسیح یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ مسیح یسوع جو ہے وہ مجسم ہو کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اور یسوع مسیح کو پیدا ہونے کے لیے اس کی ماں کو 9 ماہ کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو ذہن میں آپ اس بات کو بٹھائیے کہ جب اس کائنات کو تخلیق کیا جا رہا تھا, جب اس کائنات کو بنایا جا رہا تھا تو ہمارے خداوند یسوع مسیح وہاں پر بھی موجود تھے. اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی لحاظ سے خداوند یسوع مسیح جو اس زمین پر آئے ہیں اور وہ پیدائش دنیا کے حساب سے لیکن وہ مجسم ہو کر آئے ہیں. اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ جب خدا اس کائنات کو تخلیق کر رہا تھا تو وہ کلام کو استعمال کر رہا تھا, وہ اس کلمے کو استعمال کر رہا تھا کیونکہ جو اس کے منہ کے اندر تھا. اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور یوحنا پہلا باب کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے اور وہی کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے بیٹے کا. آمین. اور جب خدا اس کائنات کو اگر پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت کے اندر جائیں تو میرے بہنوں اور بھائیوں وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کر رہا تھا اور صرف خدا تھا اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ کلام تھا اور وہ کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام بیٹے کی صورت میں مجسم ہو کر اس زمین پر اترا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کے منہ کے اندر تھا وہ کلام تھا جس کو بائبل مقدس ہے وہ خدا کا کلام
कहती है खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस जमीन पर आए और उसी कलाम के सबब से जो है वो कायनात जो है वो बनना शुरू हो गई। और आप देखते हैं कि कायनात कितनी खूबसूरती से, और जब खुदा ने कहा कि कायनात जो है बनाने का आगाज किया तो सबसे पहले उसने कहा क्या कहा? रोशनी रोशनी हो जा। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि रोशनी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर उसने सबसे पहले बनाने का आगाज किया तो मेरे बहनों और भाइयों इस बात को, इस मुकाशफा को अपने जहन के अंदर रखिएगा। उसने सबसे पहले अपने मुंह से अपने बेटे का नाम लिया कि ये नूर है, रोशनी है। उसने कहा कि सबसे पहले रोशनी हो जा। यानी कि कलाम के बिना ये कायनात जो है वो वजूद में नहीं आ सकती थी। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर ऐसा हुआ जो किसी और की पैदाइश पर नहीं हुआ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक यूनिक है, दुनिया से अलग है, एक लासानी है। और यीशु मसीह का पैदा होना दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करता है। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं इस बात को। एडी और बीसी का जब मतलब आता है तो एडी का मतलब है एनो डोमिनाई, यानी कि मसीह से पहले। बीसी का मतलब है कि मसीह से पहले, बिफोर क्राइस्ट। और जब यीशु मसीह पैदा हुए और वहीं से कैलेंडर का जो है वो आगाज हुआ और फिर उसको नाम देते हैं एडी। इसका मतलब है एनो डोमिनाई, यानी कि मसीह के वक्त से, यानी कि यीशु मसीह का पैदा होने का सबसे पहले दुनिया पर इफेक्ट ये पड़ा कि उसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक यीशु मसीह से पहले, एक यीशु मसीह के बाद। इसका मतलब है जो कुछ भी दुनिया के अंदर होता है यीशु मसीह का नाम जरूर आता है। ये 100 साल कबल अज़ मसीह, ये 100 साल कबल अज़ मसीह बात हुई है। कोई भी मजहब हो, वो यीशु मसीह का नाम जो है जरूर होता है। इस बात के लिए धूल तालियां। और यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का मुजस्सम होना मेरे बहनों और भाइयों पूरी दुनिया की तारीख को हिला कर रख देता है। इस पैदाइश पर फरिश्ते उतर कर गाते हैं आलमे बाला पर खुदा की जीत हो। ये किस कदर जो है वो खूबसूरत जो है वो पैदाइश है मसीह की कि फरिश्ते उतरे हैं और फरिश्ते जो है वो गा रहे हैं। खुदावन ने जब इस कायनात को तख्लीक किया तो खुदा ने जब वो 4 किस्म की जो है वो पैदाइशें हैं उनको जो है वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो है वो तरतीब दिया। और मैं आज उन्हीं पर जो है वो बात करूंगा। खुदा ने सबसे पहले जब कायनात को बना लिया, जब कलमे का इस्तेमाल कर लिया, और कलमे का इस्तेमाल करने के बाद उसने सबसे पहले किसको बनाया? किसको बनाया? आदम को। मैं पैदाइशों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले उसने किसको बनाया? आदम को बनाया। तो लिखा है कि उसने मिट्टी से आदम को बनाया और फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और जब उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और बाइबल ये मुकद्दस ये फरमाती है कि फिर इंसान जो है वो जीती जान हुआ। ये आदम की जो पैदाइश थी ये गुनाह से मबरा थी। ये आदम की पैदाइश जो थी, ये उसका बनाना जो है ये गुनाह से पाक था। जब आदम को तख्लीक किया गया तो गुनाह उस पर नहीं था, ना वो गुनाह के पीछे किया जा रहा है, ना उसका गुनाह के साथ ताल्लुक है। और बहुत देर जो है वो आदम के अंदर खुदा की हजूरी में रहा। और ये आदम की पैदाइश एक पाक पैदाइश है और एक बिल्कुल अनोखी पैदाइश है, क्योंकि ये पैदा नहीं हुआ, इसको बनाया गया है। अब दूसरी पैदाइश की तरफ चलिए। दूसरी पैदाइश जो है वो हवा की है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर जब उसने हवा को बनाना था तो आदम पर एक गहरी नींद भेजी और आदम जो है वो सो गया। और खुदा ने उसकी एक रिब ली, खुदा ने उसकी एक पसली निकाली और उस पसली से उसने क्या किया? हवा को बनाया। ये दुनिया की दूसरी पैदाइश थी। और ये दुनिया की दूसरी वो पैदाइश है जो बिल्कुल गुनाह से पाक थी। ये दुनिया की दूसरी पैदाइश है जिसका गुनाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब ये दो जो पैदाइशें हैं ये दुनिया से अलग है, गुनाह से दूर है। और जब ये बन गई है तो मेरे बहनों और भाइयों, आपको बताना चाहता हूं कि जब ये दोनों बन चुके हैं तो इनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा गुनाह आया और उस गुनाह के सबब से नस्ल इंसानी के अंदर गुनाह, और नस्ल इंसानी से चलते चलते आदम से लेकर आज तक की नस्लों के अंदर गुनाह एक तरतीब के साथ हमारी नस्लों के अंदर जो है वो काम कर रहा है। और पिछले दिनों मैंने कहा कि जब आदम गुनाह कर रहा था तो हम कहां थे? हम आदम के सुलभ में थे, हम आदम की नस्ल में से पैदा हुए हैं। और जब आदम ने गुनाह
किया और वही गुनाह नस्ल इंसानी के अंदर जो है वो आया। ये दुनिया की दो पैदाइशें पाक थी, लेकिन जब ये गुनाह में गिर गए तो उनसे जो नस्लें पैदा हुई है वो भी गुनाह के अंदर जो है वो चली गई है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए जो आदम और हवा की थी। गुनाह से पहले की बात कर रहा हूं, बात की नहीं कर रहा। अब तीसरी पैदाइश, अब जब तीसरी पैदाइश, आदम ने भी गुनाह किया, हवा ने भी गुनाह किया, अब जो है वो उनके वसीला से जो नस्लें पैदा हुई हैं वो जो है वो पैदा हो रही हैं, और बाइबल ये फरमाती है कि वो नस्लें गुनाह में पैदा होती हैं। कितने समझ रहे इस बात को? वो नस्लें गुनाह में पैदा हो रही हैं। और दाऊद कहता है कि हमें गुनाह की हालत में पैदा हुआ। हम ज़बूर भी कहते हैं, गाते हैं ना कि मैनू बेच गुनाह ने, इसका मतलब है हम गुनाह में पैदा हुए हैं। अब खुदा ने इंसान को, अब खुदा ने आदम को क्या किया? अपने साथ मिलाप के लिए अदन के अंदर रखा, और जब वो अदन के अंदर जब उसने गुनाह किया, खुदा को मजबूर होकर उसको निकालना पड़ा। अब उनके वसीला से जो नस्लें पैदा हुई हैं उनके अंदर भी गुनाह है। सबने गुनाह किया खुदा के जलाल से, अब सब के सब गुनहगार हैं। अब कोई भी खुदा के जलाल के लायक नहीं है, अब कोई भी खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकता। अब खुदा ने एक सिलसिला तरतीब दिया कि किसी ना किसी तरह से आदम फिर से अदन के अंदर आ जाए, आदम किसी ना किसी तरह से फिर से मेरी हुजूरी में आ जाए। और जब हम अदन का जिक्र करते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, हम खुदावंद की हुजूरी का जिक्र करते हैं। अब उसने ये सोचा मैं किसी ना किसी तरीके से आदम को फिर उसी जगह पर लाऊं, उसी जगह पर जहां पर उसकी सोबत के अंदर रहता था, जहां पर वो मेरे साथ मुलाकात करता था, जहां पर उसके साथ गुफ्तगू करता था। अब ये मेरे बहनों और भाइयों, ये बहुत एक लंबा गैप जो है वो बन चुका था। अब ये बहुत मुश्किल था। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप जब हिस्ट्री को खोले, एबार की किताब के अंदर जाए, तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ने एक सिलसिला जो है वो तरतीब दिया। अब सिलसिला क्या था कि आदम को, अब खुदा की सोच ये थी कि आदम को यहाँ पर लाना है। ये अदन है, आप समझ लीजिए, ये अदन है। अब आदम की सोच थी कि उसको यहाँ पर लाना है, खुदा की सोच थी। उसने क्या किया? उसने शरीयत के अंदर कुछ कुर्बानियों को तरतीब दिया। उसने एक खता की कुर्बानी रखी, एक उसने सलामती का ज़बीहा रखा, एक उसने सोखरी कुर्बानी, एक नजर की कुर्बानी और एक जुर्म की कुर्बानी। ये 5 कुर्बानियां थी जो खुदा ने सिर्फ इसलिए हुक्म दिया था कि किसी ना किसी तरीके से इंसान जो अपने गुनाहों को जब कफारा देकर फिर से मेरी हुजूरी में आ जाए। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर अब जाए तो जितनी भी कुर्बानियों का मैंने जिक्र किया, हर एक कुर्बानी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो यीशु मसीह की कुर्बानी से है। अगर हम देखें जुर्म की कुर्बानी, तो मेरे बहनों और भाइयों, जुर्म की कुर्बानी के लिए पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है कि वही हमारा कफारा है। कौन? यीशु मसीह। जब हमने जुर्म किया और जब बनी इस्राएल जुर्म करते थे, कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता था, तो वे एक बकरा लेते, एक मेढ़ा लेते, तो कुछ भी अपनी जेब के हिसाब से जानवर खरीदे, उसको हैकल के अंदर लेकर जाया जाता और वहां पर जो है वो एक कुर्बानी के तौर पर गुजराना चाहता। और जब गुजराना चाहता तो फिर उसका गुनाह जब पाक में जब माफ हो जाता तो वो फिर से खुदा की हुजूरी में आना शुरू हो जाता। और जब उसका फिर दोबारा गुनाह करता तो फिर उसको नई कुर्बानी की जरूरत पड़ती। अब यीशु मसीह हमारे जुर्म की खातिर जो है वो कफारा दे चुका है। अब नजर की कुर्बानी का जिक्र किया जाए तो वहां पर लिखा है कि खमीर से पाक एक ऐसी कुर्बानी जो खुदावंद के लिए गुजरानी जाती थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह की तालीम को अगर देखें, अगर यीशु मसीह के एक्ट को देखें, तो मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह बेखमीर गुनाह के अंदर, खमीर होता है गुनाह और बेखमीर होता है जिसमें गुनाह ना हो। और यीशु मसीह बेखमीर के तौर पर जो है वो उस सलीब पर जब चढ़ाए गए, और यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी जात के अंदर कौन गुनाह को साबित जो है वो कर सकता है। अब यीशु मसीह ने इस कुर्बानी को भी दे दिया। अब सलामती की कुर्बानी का जब जिक्र करते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे लिए कोई सलामती नहीं थी। अगर यशायाह की किताब को आप पढ़े 58 बाब के अंदर लिखा है कि हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारे गुनाहों की खातिर उस पर सियासत की गई, वो कुचला गया, वो मारा गया। उसने हमारी सलामती के लिए अपने आप को पेश किया। उसने जब हमने खताई की,
ये अगली कुर्बानी का जिक्र कर रहा हूं। तो लिखा है कि खता की कुर्बानी के लिए भी एक कुर्बानी दी जाती थी, और खता की कुर्बानी के लिए जो कुर्बानी दी जाती थी उसको शहर से बाहर, जैसे इस वक्त हम शादरा में हैं, तो ये कुर्बानी मैंने देनी है, तो मैं शहर से बाहर जाऊंगा, मैं मंडाला रोड जाऊंगा, मैं जो है वो राना टाउन जाऊंगा, लेकिन मैं शादरा में ये कुर्बानी नहीं दूंगा। इसी तरह मेरे बहनों और भाइयों, जब आप यीशु मसीह की कोई कलवरी के सारे वाकयात को देखते हैं, तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो शहर से बाहर कोई कलवरी पर दी गई थी। यानी कि पांचों कुर्बानियों का सिलसिला, पांचवी कुर्बानी जो है वो उसका नाम है सोखनी कुर्बानी। मुकम्मल तौर पर अपने आप को पेश करना, मुकम्मल तौर पर जलाना। उन चार कुर्बानियों के अंदर एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज ये थी कि कुर्बानियों के कुछ हिस्से जला दिए जाते और कुछ हिस्सों को खा लिया जाता था। लेकिन जब सोखनी कुर्बानी का जिक्र करते हैं, तो सोखनी कुर्बानी एक बकरा लिया, उसको ज़बह किया और जब कुर्बानगार पर रखा और सारी को जला दिया। अब यीशु मसीह ने सोखनी कुर्बानी के तौर पर, अब देखिए सर से लेकर पांव के तलवों तक यीशु मसीह के पूरे जिस्म पर आपको खून नजर आता है, उसकी पूरी बॉडी पर नजर आता है कि वो किसी के लिए बलिदान हो रहा है, वो अपने आप को सोखनी कुर्बानी के तौर पर जो है पेश कर रहा है। अब जब खुदा ने ये सिलसिला जो है वो दिया, तो मेरे बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि इस सिलसिले के सबब से भी इंसान जो है वो गुनाह से बाहर ना निकला। मेरी तरफ देखिए, गुनाह से बाहर ना निकला, और वो यूं ही गुनाह जो है वो करता रहा। इसलिए खुदा ने ज़बूर जो है वो 40 के अंदर कहा कि कुर्बानी को तू पसंद नहीं करता, सोखनी और खुदा की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। ये दाऊद कह रहा है, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में। अब ये दाऊद कह रहा है कि खुदावन तू सोखनी कुर्बानियों को पसंद नहीं करा, तो कुछ नहीं पसंद करता। यशायाह पहला बाब, वहां पर लिखा है कि मुझे तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से क्या काम। यानी कि खुदा इन कुर्बानियों से भी बेजार नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुदा का जो प्रोग्राम था वो ये था कि फिर से आदम के अंदर आदम आ जाए, फिर से आदम के अंदर, फिर से मेरी हसूरी के अंदर इंसान जो मुझसे नाफरमान होकर निकला है फिर से वापस आए। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम देखते हैं कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक शरीयत के अंदर तो दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और खून के बदले खून है। एक तो पहली बात कि इंसान जो है गुनाह फिर करता था, बार बार कुर्बानियां देकर फिर गुनाह में चला जाता, तो खुदा इस चीज से भी बेजार हुआ। और दूसरे नंबर पर शरीयत कहती है कि जिसने जो किया है उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाए। अब इंसान गुनाह करके बकरों को जो है वो ज़बह करते थे, ये भी शरीयत के हिसाब से बात दुरुस्त नजर नहीं आती। इसलिए इंसान ने गुनाह किया, उसके लिए इंसान की जरूरत थी, और खुदा ने इस प्रोग्राम को बनाया और उसने कहा कि हाँ, मैं कुछ ऐसा ही करूंगा। इस गुनाह के अंदर गिरी हुई कौम को, नस्ल को मैं फिर से अपनी हजूरी में लाना चाहता हूं। इस मकसद को पूरा करने के लिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद ने अपने एक फरिश्ता को एक कुंवारी के पास, मरियम के पास भेजा, और उसने कहा कि खुदावंद के रूह की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो तू हामला होगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। इसका मतलब है कि खुदा का पर्पस यीशु मसीह के अंदर जब पूरा होता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि क्रिसमस उसका है जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है, और जिसकी जिंदगी के अंदर सिर्फ ये डेकोरेशन है। मैं डेकोरेशंस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं क्रिसमस के ट्री के भी खिलाफ नहीं। अभी आने वाले दिनों में, अगले त्योहार तक शायद आपको दिखेगा यहाँ पर भी, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ। उन चीजों का क्या करना आपकी जिंदगी मसीह से दूर है, उन चीजों का क्या करना, उन डेकोरेशंस का क्या करना, अगर मसीह आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आरास्ता नहीं है, मसीह आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो नहीं है। इसलिए आपको बहुत ऐसे लोग जो है वो नजर आएंगे इस क्रिसमस पर। आपने गुजरे सालों में भी बहुत से देखे होंगे कि मुख्तलिफ अपने गेटअप के साथ जो है वो सरों पर, माथों पर पट्टियां बांध कर, मुंह में पान रख के, सिगरेट रख के जो है वो सजावटें कर होते, गालियां निकाल होते, गलियों में जो है वो ऊंची आवाज में लगाए गीत ही होते हैं। लेकिन उनका, मैं आपको सच कहूं, उनका मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब बाइबल मुझे बताती है, क्योंकि मसीह का आने का मकसद यही था। उसने मरियम को यही कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से
इसका मतलब है जो गुनाह के अंदर सजावट कर रहे हैं वो बच जाएंगे? किसको लगता है कि वो बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। ऐसा मुझे बाइबल नहीं बताती। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरी है कि मसीह के तजस्सुम को पहचाने, उसकी हकीकत को, कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर क्या पैगाम रखता है, क्या पैगाम लाना चाहता है। आप जानते हैं कि यूहन्ना की अंजील के अंदर 30वें बाब के अंदर एक दफा एक सरदार जो है वो एक बड़ा खाता पीता शख्स जब यीशु मसीह के पास आया। उसका नाम क्या था? कोई बाइबल नहीं पढ़ता? उसका नाम निकोदेमुस था। तरतीब से बाइबल पढ़ा कीजिए, जरूर पढ़ा कीजिए। उसके पास निकोदेमुस आया और उसने कहा कि खुदावन उस्ताद, तू जो कुछ करता है कोई नहीं कर सकता जब तक उसके साथ खुदा ना हो। और यीशु मसीह ने उसका जवाब कुछ और ही दे दिया। क्या दिया? कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को दाखिल होना तो दूर की बात देख भी नहीं सकता। अब यीशु मसीह ने उसको ये जवाब दे दिया। अब मैं आपको बताऊं कि वो इतना शरीयत को समझने वाला बंदा है। वो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक शख्स जो बूढ़ा हो जाए, जवान हो जाए और वो फिर से बच्चा बनकर अपनी माँ के पेट के अंदर आए, फिर से पैदा हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो रूह और पानी से पैदा हो, इसका मतलब रूह और पानी से पैदा होने का मतलब कि हमें गुनाह के एतबार से मरकर एक नई पैदाइश को लेना है। अगर आप ले चुके हैं, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं ली तो मेरे बहनों और भाइयों, नई पैदाइश जो है वो बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि यीशु मसीह का पैदा होना जिस्मानी नहीं था, यीशु मसीह का पैदा होना रूहानी था। और यीशु मसीह का पैदा होना रूहानी था और वो रूहानी तजर्बे रखता था, वो रूह के अंदर चलने वाला था। इसलिए वो चाहता है कि जब हम गुनाह के अंदर पैदा होते हैं, जब हम मरे हुए पैदा होते हैं, तो उसके रूह कुद्दस का मजा चखे, उस रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर एक नई पैदाइश के वसीला से जब हम लेते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, हम भी रूहानी तौर पर जो है वो जी उठते हैं। हम भी रूहानी तौर पर जब पैदा होते हैं तो गुनाह हमारी जिंदगियों में से दूर चला जाता है। हालेलुया। और वो अलग बात है कि हम गुनाह को छोड़कर तौबा करके नई पैदाइश का तजुर्बा लेके हम फिर जो है वो गुनाह के अंदर चले जाते हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन खुदावंद का मकसद जो है वो बेशक जो है वो खुदा गुनाह जो है वो माफ करता है, लेकिन हो भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो बार बार जो है वो गुनाह करते रहे। हमारी खातर मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी जगह पर पैदा हुए जिस जगह का मैं समझता हूं कि बड़ी अजीब सा जो है वो काम है। किसमें पैदा हुआ? किसी को नहीं पता। ऊंची तरह बोले। चरनी क्या, कौन सी जगह होती है? जहां पर जानवर चरते हैं, जहां से जानवर खाते हैं, चरनी के अंदर, खुरली के अंदर। यीशु मसीह उस जगह पर पैदा हुए ताकि मेरे बहनों और भाइयों इस बात को दिखाए कि मैं बहुत बड़ा एक दुनियावी बादशाह लेकर नहीं आया, बल्कि मैं एक ऐसी बादशाह लेकर आया हूं जिसका ताल्लुक जो है वो दुनिया से नहीं बल्कि खुदा के साथ है। यूहन्ना की मां आ गई, यूहन्ना और उसका दूसरा भाई याकूब और यूहन्ना की मां यीशु मसीह के पास आ गई। उनको कहती है कि उस्ताद, जब तू अपनी बादशाह में आए तो एक पासे मेरे बड़े पुत्र को बिठाई तो दूसरे पासे मेरे छोटे पुत्र को बिठाई। यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं बिठाऊंगा। क्या कहा? उसने कहा कि मेरी बादशाहत यहाँ की नहीं बल्कि आसमान की। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है उसकी पैदाइश यहाँ पर तो हुई है, अगर आप समझते हैं कि उसकी जब वो बादशाह यहाँ की है तो फिर आप धोखे में। हाँ, 1000 बादशाह उसकी जरूर यहाँ पर है, लेकिन जो अपनी बादशाह है वो खुदा की हजूरी में है, नए यरूशलेम के अंदर। और ये बहुत जरूरी है कि मेरे बहनों और भाइयों, हम इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो रखें और नई पैदाइश लेकर उस रूहानी के साथ रूहानी बने, ताकि हम हकीकत में असल क्रिसमस को एंजॉय कर पाए। वो वाले मसीही नहीं जो मजहबी स्पिरिट रखते हैं अपने अंदर और हल्ला गुल्ला जो है वो करते हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ने हमें अलग पैदा किया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को अपने साथ लेकर चले। और यीशु मसीह का मतलब भी यही है, जो यीशु मसीह का एक नाम है इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो मेरे अजीजों, हमें एक डिफरेंट लाइफ जीने की जरूरत है, एक अलग रूह से ममूर
जो है वो जिंदगी को। इसलिए अगर आप यहाँ पर चर्च के अंदर हो तो मेरे बहनों और भाइयों, आज का ये पैगाम जब आप क्रिसमस के अंदर जो है वो जब बहाल हो चुके हो, क्रिसमस के अंदर जो है वो शामिल हो चुके इस महीने में, बहुत जरूरी है कि इस क्रिसमस की हकीकत को जो है वो जानिए। और जो दूसरे काम करते फिरते हैं और बात से जो बड़ा दिन भी मना रहे हैं, वो बिल्कुल क्रिसमस के अपोजिट है और उसका खुदा के साथ दूर दूर तक ताल्लुक जो है वो नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ हो तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का आपकी जिंदगी के अंदर होना नहायत जरूरी है। कुर्बानियां मांग पड़ गई, कुर्बानियां निजात पेश ना कर सकी, लेकिन यीशु मसीह को इस जमीन पर आना पड़ा। मैंने आपको पिछले तौर बताया था ना कि खुदा ने एक ज़ियाफत, एक मालिक ने एक ज़ियाफत तैयार की, उसने बहुतों को बुलाया कि तू भी आई, ठीक है। उसने दावतनामे भेजे और जब प्रोग्राम का दिन आया तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब मालिक जो है परेशान हो गया, उसने कहा कि ऐसा करो कि जाओ, बाजारों में जाओ, चौकों में जाओ, गली के नुकड़ों पर जाओ और जहां जहां से जो जो मिलता है उनको खींच लो। अब बादशाह की दावत पर आने के लिए उनके लिए जिस्मों पर जो है वो शाही लिबास होना जरूरी थे। अब कोई गली के अंदर भीख मांग रहा है, कोई कामते जा रहे हैं, कोई मंडी जा रहे हैं, हाँ, कोई मिस्त्री दिहाड़ी पे जा रहे हैं, कोई हाथ से कांडी फड़ी, हाँ, उन्होंने सबको पकड़ा और ले जाकर जो उसको बादशाह को कहा कि ये खींच कर ले सारों को। बादशाह ने कहा अब इनके कपड़े जो है वो इस लायक नहीं है कि ये इस ज़ियाफत में शामिल हो सके, इनके लिए अलमारी खोली जाए, एक शाही अलमारी। उसने शाही अलमारी खोली और उसमें से कपड़े जो है पहनाए, उन्होंने कपड़े पहने और जब इस ज़ियाफत के अंदर जो है वो शामिल हुए। अब जो बुलाए हुए थे वो आए ना, जो बुलाए नहीं गए वो आ गए। आप जानते हैं बुलाए हुए कौन है? आप जानते हो? यहूदी थे जो बुलाए हुए थे, यहूदी जो बुलाए हुए थे। और खुदा ने कहा कि ये बुलाए हुए ने तो मुझे सलीब पर चढ़ा दिया, अब गैर कौमों में से लाओ लोगों को। मेरे बहनों और भाइयों, हम वो लोग थे जो चौराहों रास्तों पर खड़े थे और हमें खुदावंद ने अपनी हजूरी में बुलाया, अपनी अलमारी खोलकर यीशु के लहू से धुले हुए कपड़े पहनाए। अब हम उसकी ज़ियाफत में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज का ये क्रिसमस आपको ये पैगाम देता है कि हम कोई इस लायक नहीं थे, हम कोई उम्मत या कबीला ना थे, ये पतरस कहता है। और खुदा ने हमें बुलाया और उस ज़ियाफत के अंदर जब हमें शामिल किया जिसके हम लायक ना थे। एक बंदा आ गया, चुप करके आ गया जी, और कहा कि तेरा लिबास किथे भी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैनू बुलाया जा रहा है। आपको यकीन करना, आपको बुलाया क्या है, आपको नाम लेकर बुलाया गया है। उसने कहा कि नहीं मैं जी ठीक है। उन्होंने कहा फड़ो इन्होंने छुट लो थे जिथे रोड़ा ते दंदा ना। और मसीही होने को गाली मत दीजिए गुनाह करके, खुदा से दूर होकर मसीही होने को गाली मत दे। ये खुदा का फजल हुआ है आप पर। खुदा यीशु मसीह का आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो होना बहुत जरूरी है। आज हम मौजज़ात के लिए, शिफाओं के लिए पता नहीं कहां कहां पर चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के कफारे पर और उसके आने पर कभी गौर ही नहीं हमने किया। यीशु मसीह का शादी में होना यह मौजज़ा था। पानी को मैं बनाना मौजज़ा नहीं है, यीशु का शादी में शामिल होना मौजज़ा था। अपने घरों की ज़ियाफतों के अंदर, शादियों के अंदर यीशु को बुला लीजिए, बड़े मौजज़े होंगे, आपकी जिंदगी मौजज़ात से भर जाएगी। यीशु मसीह का कश्ती में होना मौजज़ा था, उसका आंधी को डांटना और उसको थमाना यह मौजज़ा नहीं था। इसलिए अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है तो मौजज़ात है। जब तक यीशु मसीह लाजर की कब्र पर नहीं गया तो मुर्दा अंदर ही पड़ा है, और जैसे ही यीशु मसीह को वहां पर ले जाया गया तो उसने जब आवाज दी तो मुर्दा बाहर आ गया, कब्र कफन समेत बाहर आ गया। इसलिए मसीह यीशु का आपकी जिंदगी के अंदर मेरे बहनों और भाइयों होना बहुत जरूरी है। और बाइबल ये फरमाती है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं किया जिसके वसीला से हम निजात पाए। ये खुदा का बहुत बड़ा एक मौजज़ा है यीशु मसीह का पैदा होना। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों, इस जो वो क्रिसमस पर जो है वो क्रिसमस डे को जो है वो सेलिब्रेट मत करें, बड़े दिन को जो है मत मनाएं, बल्कि यीशु मसीह की पैदाइश को मनाएं।
बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि निकल तरीके बाइबल में नहीं लिखा। ओके, हम एक दिन नहीं मनाते, हम यीशु मसीह की पैदाइश को मनाते हैं। वो पैदाइश 20 जनवरी को हो, वो पैदाइश मार्च में हो, अप्रैल में हो, इससे हमें कोई फर्क पड़ता है नहीं जी। हम किसको मना रहे हैं? हम यीशु मसीह के पैदा होने को मना रहे हैं। और यीशु मसीह के बिना कहीं पर कोई भी जब ना जा सकता है ना आ सकता है। आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद जब बंद करेंगे। अब जानते हैं कि मैंने मिसाल दी थी पिछले दिनों, एक नौजवान ने जब एक बादशाह के पास जब जाने का सोचा कि बादशाह जो है वो बड़ा अच्छा है, मेहरबान है, लोगों पर रहम भी करता है। उसने क्या किया, उसने ठानी और 1-2 दिन की मुसाफत तय करके उस बादशाह तक जब पहुंचा है तो जो चौकीदार खड़े हैं उन्होंने उसको अंदर ही नहीं जाने दिया, उसको अंदर नहीं जाने दिया। और कहा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं बादशाह साहब से मिलना चाहता हूँ, मैं 2 दिन का सफर करके आऊँ, भूखा हूँ, तो मुझे उससे मिलवाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, तू जा ही नहीं सकता। और वो बच्चा जो है वो वापस गया रोता हुआ, और उसने जाकर जो है वो रो रहा है। तो रास्ते में उसको एक नौजवान मिला। उसने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा मैं बादशाह से मिलने के लिए इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, तो ये मुझे मिलने नहीं दे रहे चौकीदार। उसने कहा चल तू मेरे साथ चल। और वो नौजवान जो है वो उस बच्चे के साथ जो है वो महल तक आया। जब महल तक आया तो जो चौकीदार थे, जो वॉचमैन थे, वो पीछे हो गए और वो नौजवान जो है वो बच्चे को लेकर जो है वो बादशाह के तख्त तक जो है पहुंचा। उसे जाकर जो है बादशाह से जो है वो बातचीत की, उससे मिला और खुश होकर जो है वो दोबारा वापस आए। उसने कहा मुझे एक बात बता। उस बच्चे ने उस नौजवान से पूछा कि जब मैं आया तो मुझे तो मिलने नहीं दिया, तो तेरे लिए उन्होंने कुछ किया, मतलब रास्ते खोल दिए, चौकीदार पीछे हो गए और बादशाह तक जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा कि मैं उस बादशाह का बेटा हूँ, खुदा के पास कोई नहीं जा सकता। यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो हर दरबार पीछे हटेगा, हर परेशानी भी पीछे होगी, और आपको यीशु मसीह के खुदा पाक के तख्त तक जाने तक कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इस नाम की कदर पहचानिए और यीशु मसीह के लिए खुदा की बेहद शुक्रगुजारी कीजिए। अब वो आदम, फिर से बात वहीं पर आती है, वो आदम जो अदन से निकाला गया, अब उसके लिए कोई काम नहीं था, कोई ऐसी वजूहत नहीं थी, ऐसी वजह नहीं थी तो वो फिर से अदन के अंदर जाए, फिर से खुदा की प्रेजेंस के अंदर जाए। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह जमीन पर आए, आदमियों की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया, और मेरे अजीजों खादमों के मुशाबा होकर जब उसने अपने आप को पस्त किया। पहले जब खुदा यीशु मसीह उसके दहने था, उसके बेटे के तौर पर था, अब अगर वो उसके दहने हैं तो मेरे अजीजों अपने आप को पस्त करके, कुर्बान करके हमारे लिए जो है वो उस महल तक दरवाजे खोलकर खुदा के बाप के जो है वो दहने जा बैठा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदा यीशु मसीह की इस हकीकत को पहचानिए और इस बड़े दिन को सिर्फ एक महज मजहबी मसीही बनकर न देखें, बल्कि एक रूह कुद्दस से ममूर तौबा ने की करे, बपतिस्मा ने लिया, मुझे कहे बपतिस्मे के साथ, तौबा के साथ खुदा की जो इस बख्शिश के लिए खुदा का मजा जब लेंगे तो मेरे बहनों और भाइयों, हम इस जमीन पर भी खुश होंगे और फिर बाप तक जो वो आसानी से जा सकते हैं। आमीन। मैं अपने स्वरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी जीसस। सब खुदा की शुक्रगुजारी करें और इस कलाम के लिए खुदा के नाम को चलाएं।